Hello dear students, welcome to the video today. So children, we are carrying on with this chapter, political parties, sixth chapter in political science, democratic politics part 2. Now we understand from here, we are understanding that political parties, how many people and in which ways is their participation in the political parties. Political parties are very smartly carrying on all their duties, carrying on their responsibilities, but still many times it happens that there are allegations on the political parties that they are being unpopular, they are indifferent, the citizens are indifferent to political parties. The kind of support, please understand that the kind of support needed for the political parties is missing. So what happens, there is evidence which is showing that it is partly true for India, and series of sample surveys are there over several decades. काफ़ी दिन से इसके ऊपर रिसर्च वर्क होता आया है, and we can see that political parties do not enjoy much trust among the people. बहुत सारे लोग political parties के ऊपर trust नहीं करते हैं, and the people who are saying कि they have trust in political parties is not much, not at all, is more than those who have same or great trust, जितना लोगों का विश्वास है. So the level of participation क्या होता है, people need to participate in the activities of political parties, and these days it is increasing. Now the level has increased, and the proportion of those people who are saying that they are members of some political party was higher in India. पहले ये बहुत हाई था. बहुत सारे एडवांस कंट्रीज़ में जैसे कनाडा, जापान, स्पेन एंड साउथ कोरिया, वहाँ पे द पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ वाज लेस इन कंपैरिजन टू इंडिया. ठीक है, हायर इन इंडिया देन मेनी कंट्रीज़. अब क्या हो गया है, लास्ट 3 डेकेड से प्रपोज टू बी मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैज़ गॉन अप. काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, and they feel close to the political party. It has also gone up in India during this period. Look at the bar graph. Just see the bar graph that is mentioned here. 1971, 1996, 1999, 2004 and 2005. Party membership had risen to a very high level in India, and more people are getting involved in the working and in the functioning of the political parties. Income क्या होता है साउथ एशिया में, क्या है इनकम, इज देयर ग्रेट इनकम, सम पीपल हैव ग्रेट इनकम, डोंट नो. तो आप ये देखिए, people are more interested in the political activities. That is what is explained through these graphs. And in different years, just see party membership has risen in India. कितना तेज़ी से बढ़ा है. 1967 देखो, 1971 देखो, पहले इतने कम थे, और अब देखो, look at the graph of the people's participation in the political party activities. कितना बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं. Some other countries data is given here, how these countries the people are participating, and India का ग्राफ उसमें कहीं ऊपर है. The graph of India is quite above in comparison to the other countries. Okay, after this, just check how these cartoons are saying. What are these cartoons saying? It is crunching the numbers. See the numbers that is mentioned. Look at the numbers. 35. क्या? What actually is this? 27% of Canadians think that the liberals should be in power. कुछ लोगों को लगता है कि liberals को power में होना चाहिए, but some people feel
that 35% think that the conservatives deserve a chance. Conservative and what liberals and conservatives के बीच में ये लड़ाई चल रही है, जहाँ पे कि it is decided how many people should be the members of this party, should be participating. And 98%, just see, look at the question, 98% of Canadians feel that politicians should be locked in the trunk. ठीक है, उनको करके of 82 Yugo going over नाइग्रा फॉल के ऊपर से उनको नीचे फेंक देना चाहिए. हाँ, locking all the Canadians in, it is very shocking that all the Canadians in one big trunk and then throwing that trunk right away, right from above the Niagara Falls. तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. This should not happen. So this is something that is quite shocking. Okay. अब देखते हैं अपनी कंट्री के बारे में. लेट्स कम टू आवर कंट्री. लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री. सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट द नेशनल पार्टीज. नेशनल पार्टीज आर देयर, ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया. एंड नेशनल पार्टीज प्ले एन एविडेंट रोल. आज जितना भी इंडिया में जो कुछ भी नज़र आ रहा है, किसने किया है? भगवान जी ने आके किया है. नो गॉड हैज़ बीन देयर. It has always been the blessings of God that national parties are working in a proper manner. तो फेडरल सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं. डेमोक्रेसीज आर फॉलोइंग अ फेडरल सिस्टम. टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर. Only one of the federal, एक तो which is present in only one of the federal units. Party is present in several or all units of federation. सारी जगह पे the parties that are there, एक तो वो हो गई और एक हो गई जो कि एक ही जगह से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं. So look at the kind of functioning, look at the kind of working of these political parties. Next, इंडिया में भी यही चीज़ चल रही है. हाँ, फेडरल यूनिट्स कंट्री वाइड होती हैं कुछ पार्टीज विच आर कॉल्ड एज नेशनल पार्टीज. ठीक है, नेशनल पार्टीज जैसे कि बीजेपी हैं, कांग्रेस हैं, सीपीआई है. इनके कैंडिडेट्स दिल्ली में भी हैं, आगरा में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, एज वेल एज दे हैव देयर मेंबर्स इन अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो. तो इस तरह से एवरी न्यू the national parties are having their members. All these units, ये लेकिन पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है, पार्टी की एक ही चीज़ होती है, एक ही आइडियोलॉजी होती है, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं. बाय एंड लार्ज all the units follow the same policy. ठीक है, नेशनल लेवल पे जो चीज़ फ़ायदेमंद होती है वही चीज़, वही काम ये कर रहे हैं. नेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड. इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीज़न इन इंडिया, वेदर द लो कास्ट और द हाई कास्ट, हर एक को इक्वालिटी मिलना चाहिए. पहला तो ये चीज़ है दैट द नेशनल पार्टीज आर डूइंग. नाउ नेशनल पार्टीज ऐसे तो नहीं बन जाती है. They are making strategies, they are making policies, they are making programs. लेकिन पहली चीज़ and the most important is that every party has to register themselves with the election commission. Election commission, every party is treated equally. लेकिन हाँ, एक चीज़ है, the parties offer some special facilities to the established parties. लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज़ को ये जो इलेक्शन कमीशन है थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिलता है, दैट इज़ फॉर श्योर. लेकिन दैट डज नॉट मीन that the political parties the other political parties cannot put up their point to the election commission. Election commission is very clearly
सपोर्टिंग द मेजर पार्टीज, ये जिन पार्टीज को ये प्रिविलेज मिलता है, सम अदर स्पेशल facilities that are recognized by the election commission is there, इस पर्पस के लिए कुछ और फैसिलिटीज़ आर देयर. अब ये जो हैं facilities like during the time of elections some extra advantage is given to them. थोड़ा सा इनकी बातों ने, एक्स्ट्रा एडवांटेज तो मैं नहीं कह सकती हूँ, but then the big political parties follow their terms and conditions. इलेक्शन कमीशन के रूल्स को भी फॉलो करते हैं, लेकिन एट सम पॉइंट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने से कुछ काम करना चाह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन डजंट अपोज इट. इलेक्शन कमीशन ने कुछ डिटेल्ड क्राइटेरिया डिसाइड किया है. नो पार्टी कैन स्टैंड एंड से आई एम द नेशनल पार्टी. नो, there are certain terms and conditions that needs to be fulfilled by the election commission, by the political parties. Now, पहला चीज़ तो ये है कि a party must get in order to be recognized, कुछ criterias हैं. What is that? सबसे पहला तो children, this is a very frequently asked question for the boards. Kindly make a note of it. On what criterias is the national party decided? What are the major criterias for declaring a political party as a national party? इसमें party which is securing at least 6% of the total votes. जो पार्टी को 6% of the total votes मिल रहे हैं in an election to the legislative assembly of a state. किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में जब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें 6% वोट मिलना चाहिए एंड 2 सीट्स इज़ रिकग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी. स्टेट पार्टी के लिए पहला क्राइटेरिया देख लीजिए कि आपको 6% वोट मिलना चाहिए. जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मीन्स वॉट एवर वोटिंग हैज़ हैपेंड, हाउ मेनी पीपल हैव पुट द वोट, उसमें से 6% वोट जो है वो इनको मिलना चाहिए एंड 2 सीट्स भी इनको जीतनी है टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी. एक स्टेट पार्टी के रिकग्निशन के लिए 2 सीट्स भी जीतना है. नाउ व्हाट हैपेंस कि ये तो हो गया. अब नेशनल पार्टी कैसे बनेंगे? स्टेट पार्टी का तो क्राइटेरिया क्लियर हो गया. What is the criteria for being a national party? It is securing at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections. 6% votes हैं लोक सभा elections में या फिर assembly elections में 4 states में. And they are winning at least 4 seats in the Lok Sabha. लोक सभा के लिए 4 सीट्स चाहिए. स्टेट पार्टीज के लिए 2 सीट्स है, लेकिन नेशनल पार्टी रिकग्नाइज होने के लिए 4 सीट्स चाहिए. दैट इज रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी. ऐसी पार्टी को हम क्या कह रहे हैं? ऐसी पार्टी को हम नेशनल पार्टी कह रहे हैं. ओके, नाउ ये जो क्लासिफिकेशन जस्ट नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड, द क्लासिफिकेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड, देयर वेयर अभी तक क्या है 2018 तक का ये क्राइटेरिया 2018 तक का है that there were 7 recognized national parties. कंट्री में 7 recognized national party हैं by 2018. इन सारी पार्टीज़ के बारे में कुछ जानते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड. सबसे पहले जो एक पार्टी हम जिसके बारे में बात करेंगे आजकल, उस पार्टी का बहुत सारा lot of discussions are going on about the activity of this party. So this party is AITC. AITC, All India Trinamool Congress. ठीक है, All India Trinamool Congress. कब ये पार्टी लॉन्च हुई? It was launched on 1st January 1998. 1st January 1998, a very new party. लेकिन it has made a lot of mark in the political system. पूरा पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया है. काफ़ी जगह पे अपनी बातों को ऐसे रखा है दैट नो अदर पॉलिटिकल पार्टी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम, इवन द बिग पॉलिटिकल पार्टीज. आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट इन डिटेल, बट देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू पुट अक्रॉस. So Mamata Banerjee, a lady, she recognized as a national party in 2016
पार्टी का सिंबल क्या है? फ्लावर्स एंड ग्रास. वेरी सिंपल, very simple symbol is there. They are committed to secularism and federalism. सेक्युलर होना है और फेडरल होना है. सेक्युलर किसी भी धर्म को ऐसे करके मतलब खास सपोर्ट नहीं है. इट इज़ रेस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग्स द स्टेट एंड सेंटर. ओके, कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म. नाउ वेस्ट बंगाल में इट इज़ इन पावर सिंस 2011. 2011 से ममता बनर्जी की ये जो पार्टी है इट इज़ इन पावर एंड इट हैज़ अ प्रेजेंस इन और भी जगह पे. इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव इन अदर प्लेसेस लाइक इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा. इन सब जगहों पे भी दिस पार्टी इज़ वेरी एक्टिव. हुए थे 2014 में जनरल इलेक्शंस दैट वेर हेल्ड इन 2014. कितने वोट मिले? इट गॉट 3.84% वोट्स एंड 134 सीट्स. 6 सीट्स लेकिन 34 सीट्स, दैट इज़ अ बिग नंबर. 3.8% वोट्स, ठीक है, काफ़ी वोट्स मिले, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा. लोकसभा में अब इनका पावर बहुत बढ़ गया है. इट हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा. तो आप समझ जाओ कि वेरी न्यू पार्टी, बट लुक एट द वे दिस पार्टी हैज़ कम अप. नेक्स्ट पार्टी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बहुजन समाज पार्टी, बसपा. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1984 एंड लीडर कौन थे? कांशी राम वॉज द लीडर. ओके, national party has it is representing, it seeks to represent the and secure power for the बहुजन समाज. बहुजन हर एक बहुत सारे लोगों को लेके चलना चाहते हैं, जिसमें कि देयर मेनली इट इज़ फॉर द डाउनट्रॉडन, द दलित्स, द आदिवासी. ओके, सो कांशी राम का यहाँ पे लीडरशिप के अंडर में दिस हैज़ हैपेंड and it is securing power for the बहुजन समाज. OBCs and religious minorities और भी हैं, दलित, आदिवासी, अदर बैकवर्ड क्लासेस और रिलीजियस माइनॉरिटी वाले जो ग्रुप्स हैं उनको ये पार्टी पूरा सपोर्ट करती है. देन कहाँ से इनके पास ये इंस्पिरेशन आ रहा है? इट इज़ ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज. सम ऑफ द वेरी डाउनट्रॉडन पीपल इन हिस्ट्री, उनकी आइडियाज़ को, जो लोग बहुत ज़्यादा कास्ट के नाम पे जिनको सताया गया है. चिल्ड्रन, आई हैव टू से दिस इन दीज वर्ड्स ओनली क्योंकि इट हैज़ बीन अ मैल प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी वेयर द लोअर कास्ट पीपल हैज़ बीन ट्रीटेड वेरी बैडली. सो दे हैव टेकन अप दिस वाव, they have taken up this pledge to spread the ideas and teachings of Sahu Maharaj, Mahatma Phule, Periyar Ramaswamy, Naikar and Baba Sahib Ambedkar. इन सारे लोगों की व्यूज़ को लेके ये आगे चल रहे हैं. ओके, एंड दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स. लोअर कास्ट के लिए खास ना ये पार्टी जो है ना, this is coming up very fast and this has established itself in such a manner because of support of Dalits and the oppressed people, extremely lower caste. So इसका main base कहाँ पे है? It has its main base in the state of, कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में हैं and neighboring states like MP, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi, Punjab, all these places it has its base. काफ़ी जगह पे बसपा के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं. There are many supporters of बसपा and it is doing really well. They formed government in उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में they made government बहुत बार, ठीक है, कभी कभी अपने दम पे बना लिया. समटाइम्स दे गॉट मेजॉरिटी, समटाइम्स दे हैव टेकन हेल्प फ्रॉम द अदर पार्टीज एंड दे हैव फॉर्म द गवर्नमेंट. डिफरेंट पार्टी, सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज, अलग अलग पार्टीज को मिला के कोalition गवर्नमेंट वाज मेड. ओके, सो नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ बसपा.
अब क्या हो रहा है, 4% वोट्स इनको मिले थे, लेकिन सीट्स लोकसभा में नहीं मिल पाई। दो दे डिड नॉट गेट द सीट्स इन द लोकसभा, लेकिन 4% वोट्स बहुत ज़्यादा वोट्स होते हैं। पूरी इंडिया की जनता इतनी ज़्यादा है, एंड द कंप्लीट वोट्स जितने पड़े उसमें से 4% वोट अगर किसी पार्टी को जा रहा है, सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी एनकरेजिंग। ओके, अब आप देखते हैं, लेट्स सी द बीजेपी। बीजेपी founded in 1980, and BJP, now this is a GK question my dear students. What is the old name of Bharatiya Janata Party? It is Bharatiya Jana Sangh. And who founded it? It was formed by Shyama Prasad Mukherjee. 1951 में it was founded by Shyama Prasad Mukherjee. And क्या है, दे वॉन्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया ये बनाना चाहते हैं बाय इंस्पिरेशन ऑफ फ्रॉम इंडियाज़ एंशियंट, देखो इंडियाज़ एंशियंट कल्चर वैल्यू जो था, दिस इज समथिंग दैट इंडियंस आर वेरी प्राउड फॉर, इंडियाज़ एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज़। तो दीन दयाल उपाध्याय का आइडियाज़ था, देयर वॉज द आइडिया ऑफ दीन दयाल उपाध्याय, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। अंत्योदय मीन्स सेल्फ प्योरिफिकेशन, अंदर से हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड फील करना और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देना। ओके, दैट इज़ देयर अंत्योदय। तो दीनदयाल उपाध्याय's आइडियाज़ ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। देन देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। थोड़ा सा कल्चर को भी दिस पार्टी इज़ प्रमोटिंग, भारतीय जन संघ, विच इज़ टॉकिंग अबाउट हिंदुत्व। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है, इंडियन नेशनहुड के लिए एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। इंडियन नेशन को एक नए तरीके से लेके आने में दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दे वांट फुल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का तो अब इंटीग्रेशन हो गया है इंडिया में, ये पुरानी बात है, थोड़ी सी पुरानी बुक है, इसीलिए ये इसमें वो नया वाला नहीं दिया हुआ है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबको एक ही रूल और एक ही लॉ फॉलो चाहिए। ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री मस्ट फॉलो अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड लॉ, and they want to ban on all the religious conversions, religion based जो problems है उसको ये रोकना चाहते हैं। they want to stop the religion based issue। तो its support देखो कहाँ पे है, 1990s में ना इनका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। 1990s में पहले क्या था, अर्लियर इट वाज ओनली इन नॉर्थ एंड वेस्ट, अर्बन एरियाज़ में पहले बीजेपी का सपोर्ट था, बट द पार्टी अभी क्या हो गया है, पार्टी हैज़ एक्सपैंडेड इट्स सपोर्ट। जितना नॉर्थ में पॉपुलर हैं उतनी ही ये पार्टी साउथ में भी पॉपुलर है। एक्सपैंडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट, तो द नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरियाज, ठीक है। रूरल एरियाज में भी अब तो गांव गांव में लोग बीजेपी को जानते हैं। They came to power in 1998 and as the leader of the NDA, National Democratic Alliance के लीडर बन के ये आए। Several regional parties they have included, काफ़ी सारे इसमें शामिल हैं, and it has emerged as the largest party जिसमें there were 282 members in 2014 लोकसभा इलेक्शंस। लेकिन आज they have, अभी तो 2019 का डेटा इसमें नहीं दिया हुआ है, 2019 में दे हैव गॉट 300+ सीट, बहुत बड़ी बात है, दे हैव एक्चुअली गॉट 300+ सीट्स। और इतनी मेजॉरिटी विक्ट्री किसी पार्टी को मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्टी दैट इज़ देयर इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। 1925 में it was
it is believing in Marxism and Leninism. मार्क्स के आइडियाज़ को और लेनिन के आइडिया को ये फॉलो करते हैं. दे फॉलो द मार्क्स आइडिया एंड लेनिन आइडिया. आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन अबाउट मार्क्स एंड लेनिन. You all know it very clearly about Marx and Lenin. ठीक है. Marxism, Leninism, secularism and democracy. Okay. अब क्या है, दे आर सेक्युलरिज्म आपको पता है, ऑल द रिलीजन दे रेस्पेक्ट CPI and they are opposed to the forces of secessionism and communalism. अब यहाँ पे दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, दिस इज़ अ न्यू वर्ड, दैट इज secessionism. Secession means they are absolutely against the separation of different states from the country. क्या होता है, कितनी बार ऑटोनॉमी के नाम पे सम ऑफ द स्टेट्स दे से कि हम आपके इंडिया में नहीं रहना चाहते हैं, वी वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम इंडिया. वहाँ से क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी शुरू हो जाती है. देयर आर फोर्सेस ऑफ secessionism and communalism. They want the integral India. India होना चाहिए और India should be as one only, and communalism. They are accepting parliamentary democracy. Parliamentary democracy is there. They want to work, of course, promote the interest of. They are promoting the interest of working class. जो काम काज के लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, फार्मर्स की इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, पुअर के इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं. एंड हाउ दे बिकेम वीक, क्या हुआ, देयर वॉज ए स्प्लिट इन पार्टी. पार्टी ना दो ग्रुप्स में बढ़ गई. पार्टी में कभी कभी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. देयर इज डिफरेंस इन आइडियोलॉजी, देयर इज डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस, जिसके वजह से द पार्टी हैड स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. दे आर प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इज देयर. कहाँ पे ये प्रेजेंट हैं, दे आर देयर इन द स्टेट्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ठीक है, केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये बहुत ही ज़्यादा दे हैव स्ट्रॉन्ग बेस. एंड अब क्या है कि अब तो सपोर्ट इनका जो था फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट हैज़ डिक्लाइंड ओवर द ईयर्स. एंड अब थोड़ा दे हैव got less declined and secured less than 1% votes and 1 seat in 2014 लोक सभा elections. अब क्या है कि थोड़ा सा इनका little bit of their power has gone low, where because 2% seats are required. नहीं, one पार्टी, इट्स नॉट दैट कि आपको इलेक्शंस में सीट्स नहीं मिले हैं तो आपका सीट आपसे ले लिया जाएगा. दैट इज़ नॉट देयर. ओके, it advocates the coming together of all left parties. जितनी भी पार्टीज़ हैं ये सारे साथ में आके मिलके काम करते हैं. and they built a strong left front. एक बहुत ही strong base जो है वो तैयार होता. ठीक है, coming together of all the left parties and they built a strong left front. CPI is there, Communist Party of India, Marxist. वही है when they were split in two. पहला है, देखो पहला is just CPI. Okay, this is just CPI, Communist Party of India, and the next party that is there very important is CPIM, Communist Party of India, Marxist. कब फाउंड हुआ? Founded in 1964 and they are believing in Marxism. मतलब मार्क्सिज्म एंड लेनिन, मार्क्स के आइडियाज़ को और लेनिन के आइडिया को ये लोग फॉलो करते हैं. दे आर सपोर्टिंग सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड ऑफ कोर्स ऑल दीज वर्ड्स द मीनिंग इज़ वेरी क्लियर. सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड दे आर अपोजिंग इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म. ये जो राजशाही ठाट बाट से जो एक इंपीरियल स्ट्रक्चर जो फॉलो होता है ये अपोज करते हैं. एंड दे आर ऑल्सो अपोजिंग द कम्युनलिज्म. दे आर एक्सेप्टिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जैसे होते हैं उसी तरह से ये लोग चाहते हैं. दे आर एक्सेप्टिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. इट इज़ वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स.
for socio-economic justice. Socio-economic justice has to be there in India, and they are enjoying strong support. कहाँ कहाँ पे इनके supporters हैं? Enjoying strong support in West Bengal, Kerala and Tripura. Especially poor, मतलब जो गरीबों के बीच में ना इनका बहुत ज़्यादा चलती है. पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, आप ये देख लो इतने सारे लोग हैं इनको. तो ये जो है ना, द स्पेशली द डाउन ट्रॉडन पीपल आर voting them without any conditions. Okay, that's why they are so much powerful. And West Bengal में they were in power for 34 years. 2014 में it won about 3% of votes and 9 seats. 2% 6% चाहिए, लेकिन 3% विन किया है, 9 seats मिले हैं. That's not a bad number. So we can see how effectively the CPI is working. Next class में children, we will be discussing about one of the most important parties of India, Indian National Congress. Thank you children, and all the best to you.